السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 6 لیسنس ہم لوگوں کے مکمل ہو چکے ہیں اور آخری جو لیسن تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو حاضہ کا فیمینائن ہے, جو حاضہ کا مؤنث تھا, کیا تھا وہ؟ حاضی, ہی. تو دس اور دس, یہ اور یہ, اپنے پاس تو مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے اور نہ ہی انگلش لینگویج میں ہے, لیکن عربک میں اگر یہ مذکر کے لیے بول رہا ہے تو آپ بولیں گے حاضہ, اگر یہ مؤنث کے لیے بول رہا ہے تو آپ بولیں گے حاضی. آج لیسن نمبر 7 میں جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے ذالکا کا فیمینائن, ذالکا کا مؤنث جو کہ ہے تلکا. تو ذالکا کا مطلب بھی دیٹ ہے, تلکا کا مطلب بھی دیٹ ہے, وہ اور وہ. لیکن ذالکا جب ہم استعمال کریں گے تو وہ چیز ہوگی جو مذکر ہے, اور تلکا اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ, اور وہ چیز مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو بریف ریویژن کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کہ عربک میں 3 قسم کے ورڈز ہوتے ہیں, ایک ہے اسم نام, دوسرا فعل ورب, تیسرا حرف پارٹیکل. ٹھیک ہے, تو ہم اس بک میں صرف مینلی جو ہے نا اسم نام کے اوپر بحث کر رہے ہیں. تو ایک جو اسم نام ہے وہ ڈکلائن ہوتا, مطلب اس کا آخری جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, جیسے کہ ان, ان, آ, ای, او بدلتے رہتا ہے. تو ہم لوگ یاد کر رہے تھے 3 اس کی جو کیسز ہیں, 3 اس کی جو حالتیں ہیں, کیا تھی وہ؟ if I say un, it's مرفوع. if I say an, that's منصوب. if I say in, that's مجرور. تو ان, ان. لیکن جب الف لام آ گیا تو وہ ان جا کے او ہوا تھا, ان جا کے آ ہو رہا تھا, ان جا کے ان ہوا تھا, کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں ایک سے جمع نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ انگلش میں نہیں بول سکتے کہ دا اے پین یا پھر دا اے بک, یا تو آپ کو بولنا پڑے گا دا بک, کوئی خاص بک, یا پھر آپ کو بولنا پڑے گا اے بک. اسی طرح آپ بولیے الکتاب دا بک, یا پھر بولیے کتاب اے بک. ٹھیک, چلیے اس کے ہم لوگوں نے آگے پڑھا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو جملے سینٹینسز ہوتے ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہے جملے فعلیہ وربل سینٹینس, ایک ہے جملے اسمیہ نارمل سینٹینس. تو کیونکہ ہم لوگ اسم کی نام کی بحث کر رہے ہیں تو ظاہر بحث جو چیز آنے والی ہے جملے اسمیہ ہے, لیکن جملے فعلیہ بھی آ سکتا. جملے فعلیہ مطلب ہر وہ سینٹینس جو کسی ورب سے فعل سے شروع ہو رہا وہ ہے جملے فعلیہ, اور جملے اسمیہ مطلب ہر وہ سینٹینس کسی نام یا پروناؤن سے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جملے اسمیہ میں ہم لوگ جو ہے نا گہرائی میں جا رہے ہیں, تو جملے اسمیہ میں کیا اس کے جو کمپوننٹس ہے, جو 2 اہم چیزیں جملے اسمیہ کی کیا رہتے ہیں؟ مبتدا خبر, مبتدا خبر. ٹھیک ہے, اس کے نام اور اس کی پریڈیکیٹ. مبتدا خبر کیا ہے, یہ اس کی 2 اہم جز ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا مبتدا خبر کوئی مثال, ہاذا بیت, ہاذا مبتدا بیت خبر. تو مبتدا اور خبر عام طور پہ مذکور رہتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹ آف دی ٹائم اکثر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ رہتا, اس کے اوپر الف لام آتا, ڈیفینیٹ رہتا. موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خبر نکرہ رہتی, انڈیفینیٹ رہتی, جس کے آخر میں تنوین آتی. ٹھیک ہے, کتابن. یہ کب ہے؟ خبر اگر ایک ورڈ رہا ہے. لیکن خبر کے بارے میں دیکھیں ہم لوگ کہ خبر الگ سے, مطلب جملے اسمیہ جو سینٹینس ہے اس کے اندر خبر اور ایک جملے اسمیہ بن کے بھی آ سکتی ہے, یا پھر وہ خبر ایک جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتی ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن بیسکلی ہم لوگ یہیں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے مبتدا خبر جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ حرف جر, پریپوزیشن, کہ یہ جو پارٹیکل جب آ جاتا ہے اس کے بعد میں آنے والا اس میں کیا ہے مجرور ہوتا ہے, جس کے نیچے کیا آتا کسرہ یا پھر زیر آتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ فی بیت اللہ, اللہ کے گھر. ٹھیک ہے, بسمی اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے, بسمی. اوکے, تو بسمی اسمی کیوں ہے؟ اسما نہیں ہے, اسمو نہیں ہے, کیونکہ با ہے, با کے بارے میں پڑھے پر با ہے حرف جر. ٹھیک ہے, اس طرح من شرل ہوتے ہیں, من شرل ہوتا ہے. تو شرل کیوں بول رہے ہیں آپ من کے بعد؟ کیونکہ من حرف جر اس کے بعد آنے والا کیا ہے, اس کا مجرور ہے. اسی طرح اور ایک چیز جو اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو جو ہے نا مجرور بناتی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ. جو پوزیشن یعنی کسی چیز کی جو ہے نا اونرشپ کو بتانا ہے, اس کی ملکیت کو بتانا ہے, وہ چیز ہے مضاف مضاف. ٹھیک ہے, تو مضاف اس کے بعد آنے والا مضاف الیہ. جیسے کہ آپ کو بولنا ہے کہ زید کی کتاب, تو جو چیزیں ہونا کیا ہے, ایک زید اور ایک کتاب.
ठीक है, जैद तो जैद रहेगा, किताबों को क्या बोलेंगे, किताब को भी किताब बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे अपन अगर जैद की किताब बोलना है तो किताबो जैदिन, जैद की किताब, ठीक है। किताबो क्या है, मुदाफ है और जैदिन मुदाफ है, और दो चीजें जहन में रखना जरूरी है मुदाफ और मुदाफ इलैहि के ताल्लुक से। क्या है दो चीजें, वो मुदाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। बोले किताबु किताबा किताबी हो सकता है, लेकिन किताबुन किताबिन किताब नहीं हो सकता, अल किताब अल किताब अल किताब नहीं हो सकता। दूसरी चीज मुदाफ इलैहि के ताल्लुक से याद रखना कि मुदाफ इलैहि हमेशा क्या रहता, मजरूर रहता, उसके नीचे हमेशा क्या रहता, ज़ेर, ठीक है। चलिए इतनी चीजें बस आगे बढ़ेंगे। एक है इस्मुल इशारती लिल करीब, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर नियर। फिर एक है इस्मुल इशारती लिल बईद, इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार। दूर की, ठीक है। तो एक है इस्मुल इशारती लिल करीब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिल बईद, बईद बोलते हैं बहुत दूर है उनके, तो करीब और बईद अपोजिट है, करीब और बईद, नियर एंड फार। ठीक है, कंक्लूजन है जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, जैसे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। एक तो है इस्मुल इशारती लिल करीब, इसम मतलब नाम, इशारा मतलब डायरेक्शन जो भी है इशारा है, करीब मतलब नजदीकी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर, करीब के लिए अगर इशारा करना है तो अपने पास प्रोनाउंस क्या है, दो प्रोनाउंस अपने पास, हाजा दिस, हाज़िही दिस। जब दोनों का मतलब दिस है तो फिर फर्क क्या है, अलग क्यों है दो? अलग इसलिए क्योंकि हाजा मुज़क्कर के लिए मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होगा, हाज़िही मुअन्नस के लिए फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये अपन इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज करीब में है, टेबल में बोलना है, मैं बोल सकता हूँ कि हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, जो भी बोल सकता हूँ, ठीक है। टेबल के बोल सकता हूँ कि हाजा मक्तबुन, लेकिन अब मेरे को वो दूर की कुर्सी को बताने का है, मैं बोलूँगा ज़ालिका कुर्सियुन। ज़ालिका क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दैट वो बोलना है, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अगर कुर्सी मुज़क्कर है इसलिए बोलो, ठीक है। इसी तरह दार बोलते हैं घर को, ठीक है, वो अरबिक में फेमिनिन है, वो मुअन्नस है, ठीक है। तुमको बोलना है वो घर है, तो ज़ालिका दार नहीं बोलते, दिल का दार, वो क्या है, घर, ठीक है। तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ज़ालिका, दैट वो, और मुअन्नस के लिए तिलका, दैट वो, मीनिंग सेम है, लेकिन जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो जेंडर के हिसाब से अलग है, ठीक है।
तो ये जो लेसन है लेसन नंबर सम को इजी है क्योंकि एक कुछ नई जो है ना अलग से टॉपिक नहीं पढ़ रहे पर कुछ जो टॉपिक अपन जो देखें यहाँ पर उसके कंटिन्यूएशन है। तो मेनली हमारा फोकस है स्किल का के ऊपर कि स्किल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए जैसे स्टार्ट कर लेंगे अपन ये जो चीज़ हम इसको इरेज नहीं कर दूँ आप क्लास के बाद लिखिए, ठीक क्लास के बाद लिखिए, आप पहले सुन लीजिए। चलिए तो पेज नंबर 39 को ओपन कीजिए। 39 कैसे ओपन करेंगे अपन, 3 का निशान रहता बाद में 9 नंबर जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 3 को जो ऐसा आता अपने पास क्रॉस आता उसको स्ट्रेट कर दो, वो तीनों आता है। फिर उसके बाद जो 9 है वो नहीं, ठीक है। 39 को ओपन कर दो। तो पहला सवाल है मन हादिही, हु इज दिस, ये कौन है। तो क्वेश्चन सुन के समझ में आ रहा है कि किसी मुअन्नस चीज के बारे में सवाल है, क्योंकि सवाल मन हाजा नहीं है, सवाल क्या है मन हादिही, हु इज दिस। आंसर है हादिही आमिनतु, दिस इज आमिना। ये कौन है, ये आमिना, ठीक है, ये आमिना। तो एनालाइज कैसा करेंगे पर इसको, हाजा मुब्तदा और आमिनतु खबर। अच्छा और एक जो आमिनतु है, आमिनतु में क्यों नहीं बोल रहे पर, हालांकि अभी समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर, आमिनतु में क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि गैर मुंसरिफ है, डिप्टोट है, ममनू मिन सर्फ अरबिक में करा बोले, मतलब उसके ऊपर तनवीन और ज़ेर नहीं आता, तनवीन और ज़ेर नहीं आता। तनवीन किसको बोलेंगे हम, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं उसके ऊपर, ना ही उसके ऊपर ज़ेर आता है। चलिए तो हादिही मुब्तदा आमिनतु खबर। चलिए उसका क्या है, व मन तिलका एंड हु इज दैट। वाव का मतलब एंड, मन का मतलब हु, तिल का मतलब दैट। व मन तिलका एंड हु इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे को सवाल देखते ही समझ में आ रहा है कि वो कौन है बोल के सवाल, लेकिन वो कौन है के अंदर वो जो है एक मुअन्नस चीज है बोल के समझ को समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा, क्योंकि तिल का है और मुज़क्कर, अगर मुज़क्कर भी चले तो क्या आ रहा वहां पे, वह मन से आली का, लेकिन तिल का है तो किसी औरत के लिए या फिर किसी मुअन्नस चीज के लिए सवाल है। तो हम क्या बोलेंगे, तिल का फातिमतु, दैट इज फातिमा। वो कौन है, फातिमा है। तिल का मुब्तदा, फातिमा को खबर। फिर इससे फातिमा भी गैर मुंसरिफ है, इसके ऊपर भी दो ज़बर नहीं, दो पेश नहीं। उसके बाद है दोनों है, एक आमिना है, एक फातिमा है, ठीक है। करीब में आमिना है और दूर में फातिमा, दूर जो है ना फातिमा है। तो हाज़िही तबीबतुन व तिलका मुमर्रिदतुन, ये दिस इज नर्स, सॉरी दिस इज अ डॉक्टर एंड दैट इज अ नर्स, ठीक है। तो ये जो है खलीब में हाज़िही तबीबतुन, ये एक डॉक्टर है, ठीक है। तबीब पढ़े थे अपन मुज़क्कर डॉक्टर, तबीबतुन राउंड का लगा ली, क्या बन गया, फेमिनिन डॉक्टर, ठीक है, मुअन्नस डॉक्टर। व तिलका मुमर्रिदतुन एंड दैट इज नर्स, ठीक है। और वो क्या है, नर्स है। नर्स जो है नर्स अपने बहुत मशहूर है। तो ये डॉक्टर है और वो क्या है, नर्स है। तो अपन एनालाइज कैसे करेंगे इसको, हाज़िही मुब्तदा तबीबतुन खबर, एक सेंटेंस खत्म। वाव हर्फ अत्फ़, मतलब अत्फ़ हो रहा है, इस पे कंजंक्शन हो रहा है, दूसरी बात हो रही है। तिल का मुब्तदा और मुमर्रिदतुन जैसे खबर, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मुब्तदा दो खबर नहीं आ सकती। अच्छा ऐसी जो है ना और चीजें पर रिवाइज करना भूल गए। लास्ट सेशन में मुअन्नस के अक़साम पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फेमिनिन, याद है। तो सबसे पहले जो 3 किस्म के मेन है, एक इसके आखिर में मुअन्नस की तार, मुअन्नस की तार क्या है, जो राउंड तार, ठीक है। मुस्लिमतुन, काफिरतुन जो भी है, अभी अपन देखें आमिना तो फातिमा, ठीक है। तबीबतुन कि जितने भी आखिर में गोल तार है वो पूरे मुअन्नस की नाउन होने के चाहे हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ है, जैसे कि मुआवियतु है, उसामतु है, उसामा मुआविया, आखिर में जो ना राउंड तार है, लेकिन वो मुअन्नस नहीं, वो क्या मुज़क्कर, ठीक है। एक्सेप्शंस कुछ हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो मैक्सिमम है, अगर आते में राउंड तार आ गया तो समझ लेना कि ये मुअन्नस ना होगा, ठीक है। लेकिन दो ऐसे हैं जो आखिरी में जो है ना बड़ी ता आती है, लेकिन वो फिर भी जो है ना मुअन्नस है, कि उख्तुन और बिन्तुन, ये दो सिर्फ दो नाम है, ठीक है। दो नाम ऐसे हैं जो बड़ी ता आती है और वो मुअन्नस। ये पहली टाइप। दूसरी टाइप क्या देखिए अपन, अलिफ मकसूरा, जिसके आखिरी में खड़ा ज़बर या के साथ, सलमा, कुबरा, सुगरा, ठीक है। इसी तरह और एक दूसरी चीज क्या है, थर्ड टाइप है मुअन्नस की, जिसके आखिरी में अलिफ ममदूदा आता। अलिफ ममदूदा बोलते हैं जिसके आखिरी में हमजा हो, उससे पहले अलिफ है,
जैसे कि हुस्ना पड़ेगा, ठीक है, ये एक एग्जांपल। ये 3 मेन टाइप के फेमिनाइन्स है, ठीक है। इसके अलावा जो फेमिनाइन्स है वो एक्सेप्शन है, मतलब अलग से है। फिर इसके अंदर भी 4-5 किस्म देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना वो वर्ड जो किसी औरत के नाम हो, जैसे कि ज़ैनब है, मरियम है, आखिरी में क्या है रौनता नहीं है लेकिन फिर भी मुअन्नस है। दूसरा क्या है जो खास तौर पे किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि उम्मुन है, माँ के लिए, ठीक है। इस तरह अरूस बोल के दुल्हन के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये फेमिनाइन है, मतलब औरत के लिए इस्तेमाल हो। फिर तीसरी चीज क्या है जो अपन खास तौर पर लास्ट सेशन की टॉपिक थी, क्या थी? बॉडी के जो भी पार्ट्स दो है पूरे क्या है फेमिनाइन। आंख दो है मुअन्नस, कान है मुअन्नस, ठीक है। मुंह एक ही से अपन क्या बोलेंगे इसका मुज़क्कर है, ठीक है। हादा फमुन, हादी फमुन नहीं बोलेंगे। कान का होता है उज़ुन, तो हादा उज़ुन उज़ुन बोलेंगे, क्या हादी ही उज़ुन बोलेंगे? हादी के कान दो, ठीक है। चौथी चीज जो भी शहर के और कंट्रीज के नाम है, मिस्र है, इंडिया अपना अल हिंद है, इंडिया, ये पूरे क्या है फेमिनाइन। इसके अलावा कुछ और आते जो आपको जहन में रखना पड़ता, जैसे कि नार आग है, नफ्स है, कुछ ऐसे वर्ड है जो समा आसमान है, ये भी क्या है फेमिनाइन है, अर्द है जमीन, ये भी क्या है मुअन्नस है। तो ये अलग से आपको जहन में रखना पड़ता। बहरहाल ये कुछ मुअन्नस के सामने जो अपन देखें, अब आपको जो है ना वो जो मैं आपको बोला आप जहन में रखते हुए देखना है कि यहाँ कोई सी मुअन्नस आएगी, ठीक है। हाज़िही मिनल हिंदी, दिस इज फ्रॉम इंडिया, वतिलका मिनल याबानी एंड दैट्स फ्रॉम जापान। ये हिंदुस्तान से है और वो जापान से है। तो हाज़िही मुब्तदा मिन हर्फ जर अल हिंदी इस्म मजरूर, जार मजरूर शिबह जुमला खबर, वाव हर्फ अत्फ, तिलका मुब्तदा मिन हर्फ जर अल याबानी इस्म मजरूर। सो तिलका मुब्तदा है, उसकी खबर क्या है? मिनल याबानी जार मजरूर शिबह जुमला खबर, दो मिलके क्या बनते खबर, ठीक है। उसके बाद क्या है? हादिही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन, दिस इज शॉर्ट, सॉरी दिस इज टॉल एंड दैट इज शॉर्ट। ये लंबी है और वो पसखद है, गिड्डी है बोल सकते हैं जबान में बोलो। ये जो है ना लंबी है और वो पसखद है, ठीक है। तो हादिही मुब्तदा है, तवीलतुन खबर, वाव हर्फ हुआ, तिलका मुब्तदा कसीरतुन फिर से खबर, शॉर्ट और टॉल। तो अगर मेरे को बोलना है ये सेंटेंस कि ये लंबी है और ये गिड्डी है, यहाँ पर मुअन्नस था, मेरे को बोलना है कि ये लंबा है और वो गिड्डा है, पसखद है, कैसा बोलेंगे? खाली जो आखिर के रोनता है पढ़ा था, हाजा तवीलुन व तिलका कसीरुन, ठीक है। तवील मतलब लंबा, कसीर मतलब छोटा, जो पसखद है, जो गिड्डा है, जो है अपन उसको बहरहाल। तो खाली जो आखिर के रोनता है उसको निकाल के हाजी की जगह पे हाजा, तिल की जगह पे जाली, चलिए। मन हाजा हु इज दिस, यहाँ पे हाजा के इस्तेमाल होंगे, ये दो बच्चे दिख रहे हैं पिक्चर में। हाजा हामिदुन, दिस इज हामिद, ये कौन है? हामिद। हाजा मुब्तदा, हामिदुन खबर। वमन दालिका एंड हु इज दैट, दालिका इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि दो भी में बच्चे हैं, करीब वाला ही बच्चा है, बाद वाला ही बच्चा है। वमन दालिका एंड हु इज दैट, दालिका अली, दैट इज अली, दालिका मुब्तदा अली खबर। चलिए ये रमे खत्म हो गई। तो यहाँ पर हम लोग देखे पूरे पहली किस्म की फेमिनिन देखे हम लोग, आखिर में रौनता 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 हर चीज में क्या है जो मुअन्नस की ताल्लुक हुई, अलग से फेमिनिन हम लोग इसमें नोटिस नहीं करें। चलिए उसके बाद अजादिका दजाज, अतिलका दजाजतुन, इज दैट अ हेन, क्या वो मुर्गी है? क्या वो मुर्गी है? ला तिलका बत्तुन, नो दैट इज अ डक, नहीं वो क्या है? बतख। बत्तुन बतख थोड़ा बहुत सिमिलर है, याद रख सकते हैं, ठीक। तो ला हर्फ नफी है, जो नफी करने वाला वर्ड है, नेगेशन का ला जी, तिलका मुब्तदा बत्तुन खबर। और ये बत्तुन जो वर्ड है ये भी आखिर में मुअन्नस की तारीफ है फेमिनिन। चलिए मा तिलका, व्हाट इज दैट? तिलका बैदतुन, दैट्स एन एग, वो क्या है? वो एक अंडा है। बैदतुन
के लिए तिल का इस्तेमाल करेंगे भाई दौतुन है, आखिर में मोनस किता है, अंडा अरबी में मोनस है। अपने पास नहीं बोलते कि ये अंडा किसकी है, ना बोलते बल्कि क्या होता है अंडा किसका है। अपनी लैंग्वेज में तो मुज़क्कर है, लेकिन अरबी में क्या है मोनस। हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीरी। This is the car of the teacher and that is the car of the director. ये उस्ताद की, टीचर की कार है और वो जो डायरेक्टर है उनकी कार है, जो हेड है, प्रिंसिपल बोलिए आप बोलिए उनकी कार है। हाज़िही मुब्तदा सय्यारतु खबर प्लस हुआ मुदाफ अनुदर्रिसी मुदाफ इलैह। बारकाल्लाह फीक। इसके क्या हुआ हर्फ वाक़फ़ है। इसके तिल का मुब्तदा सय्यारतु खबर प्लस हुआ मुदाफ अलमुदीरी मुदाफ इलैह। क्योंकि आपको सेंटेंस में देखना है कि पोजीशन कहां पे है, ओनरशिप कहां पे आ रही है। ओनरशिप दो वर्ड्स के बीच में है। सय्यारतुल मुदीरी, मुदीरी की कार, डायरेक्टर की कार, प्रिंसिपल की कार। सय्यारतुल मुदर्रिसी, उस्ताद की कार, टीचर की कार। जो की है वही अपना मुदाफ मुदाफ इलैह। चलिए आगे बढ़िए। अस्साअतु अब्बासिन हाज़ी, इज दिस द वॉच ऑफ अब्बास? क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला हाज़िही साअतु हामिदिन, नो दिस इज द वॉच ऑफ हामिद। नहीं, ये हामिद की घड़ी है। तिलका साअतु अब्बासिन एंड दैट इज द वॉच ऑफ अब्बास, वो अब्बास की घड़ी है। नहीं, ये हामिद की घड़ी है, वो अब्बास की घड़ी है। तो सेंटेंस में हम लोग इंप्रूव हो रहे हैं। पहले अगर सवाल होता था क्या ये अब्बास की घड़ी है, हम लोग बोलते थे कि ला, नहीं अब्बास की घड़ी नहीं। ला तिलका साअतु अब्बासिन, हम बोल सकते हैं कि नहीं ये जो है ना ज़ालिका हाज़िही है ना, ला हाज़िही साअतु अब्बासिन। पहले हमारा नॉर्मल सेंटेंस इतना ही था कि नहीं ये तो अब्बास की घड़ी है। लेकिन हम थोड़ा सा इंप्रूव करें सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस अब बड़ा हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? ला हाज़िही साअतु हामिदिन, नहीं ये तो हामिद की घड़ी है। तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस को बड़ा करेंगे और उसको समझ के एनालाइज करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या है? ला हर्फ नफ़ी है, हाज़िही मुब्तदा साअतु खबर प्लस हुआ मुदाफ एंड हामिदिन मुदाफ इलैह। तिलका मुब्तदा साअतु खबर प्लस हुआ मुदाफ अब्बासिन मुदाफ इलैह। ठीक है, अब इसके अंदर अगर लिखे बुक में तो आप शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे कि मुदाफ इलैह के लिए आप एक मुब्तदा के लिए आप जो है ना एम रख सकते हैं। ठीक है, एम मतलब मुब्तदा, शॉर्टकट। खबर के लिए आप रख सकते हैं के। ठीक है, अब वर्ड को अंडर देना, उसको डाल देना कि मुब्तदा है, वो क्या है, खबर। ठीक है, मुदाफ के लिए आप रख सकते हैं एम जेड। ठीक है, मुदाफ। मुदाफ इलैह के लिए शॉर्टकट एम है। बढ़िया चीज आपको समझने आना है कि शॉर्टकट में से आप उधर उधर की जरूरत नहीं है। एम भी डालने से समझ आएगा मुब्तदा है खबर है। चलिए, लास्ट सेंटेंस अपने पास ज़ालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, दैट इज अ रूस्टर एंड दैट इज अ हेन। वो मुर्गा है और वो मुर्गी है, दोनों भी दैट और दैट है। लेकिन फर्क ये है कि दीकुन बोलते मुर्गे को, इसीलिए अपन इस्तेमाल करें वो ज़ालिका। दजाजतुन बोलते मुर्गी को, जो कि फेमिनिन है, मुअन्नस है, इसीलिए अपन क्या इस्तेमाल करें? तिलका। ठीक है, तो ज़ालिका मुब्तदा दीकुन खबर, एक सेंटेंस खत्म। वाव हर्फ वाक़फ़, तिलका मुब्तदा दजाजतुन खबर। चलिए, किस सवाल है इसके ताल्लुक से? चलिए आगे बढ़िए। तमारीनु एक्सरसाइजेस, इक़रा वक्त रीड एंड राइट। लेकिन आप लोग जितनी भी तमरीन है उसको लिखिए, फिर उसका ट्रांसलेशन भी करिए। चलिए, हाज़िही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन। ऐसे काम कीजिए, आप लोग पढ़िए। आप स्टार्ट कीजिए। हाज़िही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, ये मदरसा है और वो यूनिवर्सिटी है। तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे अपन? हाज़िही मुब्तदा, मदरसा उसकी खबर, वाव हर्फ वाक़फ़ है, फिर तिलका मुब्तदा जामिअतुन उसकी खबर। सेकंड सेंटेंस आप पढ़िए।
हिमारुन बोले जी हिमार ट्रांसलेशन में वो हिमार गधा, वो गधा है, ये गधा है, नहीं वो जालिका वो गधा है, और ये और वो अभी जालिका मुजक्कर के लिए फेमिनाइन, तिलका मुअन्नस के लिए फेमिनाइन, और वो गाय है। और वो गाय बराबर। एनालाइज कैसा करेंगे हम उसको? जालिका मुब्तदा, हिमार खबर, तिलका मुब्तदा बकरा तो उसकी खबर। चलिए आप पढ़िए किसका होगा? तिलका मस्जिद सही बराबर मत दरवाजा तुम पढ़ना। आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है कि अपन अरबिक सीख रहे तो पढ़ने के लिए आना आप लोग, वो मैंने बात करनी तो प्रोनाउंस कैसा करेंगे अपन उसको। अपन बोलते हैं मदरसा, मदरसा अरबिक में मदरसा है, मदरसा तुम, ठीक है। किसे बड़ी सेंटेंस हो? ज़ालिका मस्जिद ला तिलका मदरसतु, मदरसा तुम, मदरसतु, ठीक है। ट्रांसलेशन कीजिए इसका। ये मस्जिद है, क्या वो आ है? क्या वो मस्जिद है? नहीं, ये मदरसा है। नहीं वो तिलका, नहीं वो मदरसा, नहीं वो स्कूल है। मदरसा मतलब स्कूल, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो छोड़ दिए, क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करें अपन, आंसर को एनालाइज कीजिए। ला तिलका मदरसा तुम कैसे एनालाइज करेंगे? ला तो हरफ नफी है, उसके बाद तिलका क्या है? मुब्तदा, मस्जिद, अच्छा चलो हाज़ा जमल जमलुन व तिलका नाक़तुन, ये जमल किसको बोलते हैं? जमल ऊंट, नाक़तुन ऊंटनी, उसकी मुअन्नस, ठीक है। तर्जुमा कीजिए। ये ऊंट है, वो ऊंटनी है। ऊंट एनालाइज कैसे करेंगे इसको? हाज़ा मुब्तदा है, जमल खबर है, वो हर्फ वचन है, तिलका मुब्तदा है, नाक़तुन खबर। बराबर, राइट। आप इसके बाद 5 वाला सेंटेंस हाज़िही तालिबतुन, बराबर। हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन। तर्जुमा कीजिए। हाज़िही मदरसतुन, ये स्कूल है, वो तिलका तालिबतुन, और वो शागिर्द है, बच्ची है, और क्या बोलते हैं उसको? तालिब इल्म है। लेकिन तालिब इल्म क्या है? मुअन्नस है, तालिब नहीं, तालिबतुन है, ठीक है। तो ये स्कूल है और वो बच्ची है, या फिर तालिब इल्म है, ठीक है। तो हाज़िही मुब्तदा है और उसकी खबर है, वो अब इसमें हर्फ है, और तिलका मुब्तदा है, तालिब उसकी खबर। आप बड़ी फिक्र का तिलका मुब्तदा फिर खिल्तुन उसकी खबर। आप पढ़िए वहाँ से हम दोनों जवाब देंगे। बैतुल मुअद्दिन व तिलका हदीक़तुत ताजिर। एक बार रिपीट कीजिए मेरे पास। हाज़ा बैतुल मुअद्दिनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। मुअज़्ज़िन तो मुअज़्ज़िन है, बैत का मतलब घर है, हदीक़तुल बोलते बाग, ताजिर बोलते बिज़नेस। आप ट्रांसलेट मिलेगा उसको तर्जुमा करके नीचे देखिए। हाज़ा ये है, ठीक है, हाज़ा ये बैत घर, मुअज़्ज़िन मुअज़्ज़िन, हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी, ये मुअज़्ज़िन का घर है, व तिलका और वो हदीक़तुल बाग
अत्ताजिरी, ताजिर पर बोलते हैं ना बिजनेसमैन, और वो जो है ना मर्चेंट का बिजनेसमैन का बाप। चलिए मैं इसको दिल्ली से पढ़ लेता हूँ। हाज़िही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, दिस इज द स्कूल एंड दैट इज द यूनिवर्सिटी। ये स्कूल है वो यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, दैट इज अ डोंकी एंड दैट इज अ काउ। वो गधा है और वो गाय है। अज़ालिका मस्जिदुन, इज दैट अ मस्जिद? ला, तिलका मदरसतुन, नो दैट इज अ स्कूल, नहीं वो स्कूल है। हादा जमलुन व तिलका नाक़तुन, दिस इज अ कैमल एंड दैट इज अ शी कैमल। ये एक ऊंट है और वो एक ऊंटनी है। तो सेंटेंस में गौर करते रहिए कि हाजा आ रहा, उसके बाद तिलका आ रहा, ठीक है। हाजा खरीफ के लिए ये है और मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ऊंटनी है उसके लिए तिलका इस्तेमाल करें जाते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 5 है हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन, दिस इज अ स्कूल एंड दैट इज अ स्टूडेंट। ये स्कूल है और वो तालिब इल्म पढ़ने वाली लड़की है। क्वेश्चन नंबर 6, हादा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, दिस इज अ डॉग एंड दैट इज अ कैट। ये एक कुत्ता है और वो एक बिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7, हादा बैतुल मुअद्दिनी, दिस इज द हाउस ऑफ द कॉलर ऑफ प्रेयर, जो नमाज पढ़ने वाला मुअज्जिन है, मुअज्जिन का, ये मुअज्जिन का घर है। वज़ालिका हदीक़तुत ताजिरी एंड दैट इज द गार्डन ऑफ द मर्चेंट, और वो जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी आदमी है, उसका बाग। अच्छा मैं ज़ालिका बोल रहा हूं, ओके। वो तिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो बिजनेसमैन का जो है बाग। चलिए अद-दमीरुन सानी, सेकंड एक्सरसाइज। अशीर इलल कलिमातिल आतियती बिइस्मि इशारतिल बैद, आने वाले जो कलिमात हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी तरफ इशारा कीजिए। बिइस्मि इशारा, इसमें इशारा इस्तेमाल करते हुए। कौन सा इसमें इशारा? लिल बैद, जो दूर का है, वो इसमें इशारा इस्तेमाल करते हुए आपको इशारा करना है। और साथ में आपको एग्जांपल भी दे दिए कि इसमें इशारा बैद क्या है, ज़ालिका और तिलका, ठीक है, वो और वो, दैट इज दैट। चलिए तो आपको जो है ना सिर्फ दो इस्तेमाल करना है, ज़ालिका तिलका। आपको देखना है कि दोनों में से मुज़क्कर मुअन्नस कौन है, और आपको देख के बोलना। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। उम्मुन, दैट इज द मदर, वो माँ है। अब सेकंड पढ़िए इसके बाद। ज़ालिका अबुन, दैट इज द फादर। आप पढ़िए इसके बाद थर्ड वन, राइट वाला, दैट इज द, नहीं पहले मुब्तदा खबर एनालाइज करने की जरूरत है। आप बोलिए इसके बाद फोर्थ वन, तिलका मिलाक़तुन, किस वजह से मिलाक़तुन? वो चमचा है। आप पढ़िए इसके बाद पांचवा है, जिस तरह से नहीं, उसके बाद आइन, आइन बोलते हैं आँखी को। अब आँखी मुज़क्कर है मुअन्नस है, पहले बोल सकते क्यों मुअन्नस है? क्योंकि दो पार्ट देता हूँ, तो उसको मुअन्नस, तो ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, तिलका इस्तेमाल करेंगे। तिलका आइन, आइन वो आँख है। आप बड़े इसका अच्छे बात ज़ालिका हजर, ठीक है, हजर क्या है? मुज़क्कर, वो पत्थर है। अब सात वाला पढ़िए इसके बाद, सातवां वाला बी, कमीसुन, किसको बोलते हैं? शेर को। मुज़क्कर है बोलने से पहले होंगे क्या लिखा हुआ? मुज़क्कर है, क्या बोलेंगे? बोलिए, नहीं उसको सेंटेंस बनाइए, क्या बोलेंगे? ज़ालिका खमीसुन, ज़ालिका खमीस, ठीक है। फिर से रहेगा, आप फिर आगे बढ़िए। ज़ालिका के दोनों में सही है। ये हंडी से पहले पढ़े थे बन के, हंडी मुअन्नस है, चंदन भी मुअन्नस है, तो क्या बोलेंगे? तिलका खिदर। चलिए उसके बाद बोलिए नाफिज़तुन,
نافذة ايش قلنا نافذة जो नहीं है अपने पास है खिड़की चलिए उसके बाद टेंथ वाला पढ़िएगा 10वां बकरा ये क्या है वो गाय आप पढ़े फिर 11वां ذالک मत्तबुन क्या है मतलब وہ टेबल उसके बाद आप पढ़िए 12वां तिनका नाखतुन राइट वाला उसका मतलब क्या है नाखतुन ऊँटनी वो ऊँटनी ठीक आप पढ़िए उसके बाद 13वां मुहंदिस वो इंजीनियर आप उसके बाद वाला पढ़िए मुअद्दिन मुअद्दिनुन क्या मतलब उसका वो मुअद्दिन राइट बराबर उसके बाद आप फिर से पढ़िए 15वां नर्स जी वो एक नर्स है आप उसके बाद पढ़िए शरीर में पढ़े तो शरीर किसको बोलते हैं बेड को बोलते हैं शरीर जारी का शरीर ये मुद्दा करना उसके बाद हदीक़तुन वो क्या है गार्डन ठीक आप पढ़िए इसके बाद تلك طالبۃ वो एक तालिब इल्म है लेकिन वो एक गर्ल तालिब इल्म बच्ची तालिब इल्म आप बोले इसके बाद जमलुन नहीं जाली का जमलुन मुज़क्कर ऊँट नाख़तुन ऊँटनी जमलुन ऊँट नाख़तुन ऊँटनी आप पढ़िए इसके बाद बत्तख वो एक बदल चलिए यहाँ पर अपने पास खत्म हो गया ईज एक्सरसाइज के दोहराने की जरूरत नहीं फिर क्या है अल कलीमातुल जदीदतुन न्यू वर्ड्स ठीक है न्यू वर्ड्स करते हैं क्या है अल मुमर्रिदतु इसको बोलते हैं नर्स अल हदीक़तु इसको बोलते हैं गार्डन अल बत्तख अल मुअद्दिनु मुअद्दिस अन्नाक़तु ऊँटनी अल बैदतु अंडा अब वही टेबल जो मैं पे बता रहे हैं वही है अस्माउल इशारत लिल करीब अस्मा प्लूरल यहाँ पे के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर करीब फॉर नियर अस्माउल इशारत लिल बाइद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर फार वो ये कि हाजा दिस या एग्जांपल दिखाते हैं कि हाजा मोहम्मद ठीक है हादिही आमिना ये मोहम्मद है ये आमिना है ज़ालिका हामिदुन वो हामिद है दिल कर लेना वो ज़ैन ठीक है ये लिख लीजिए आप उसके बाद अपने पास नेक्स्ट सेशन में दूसरे टॉपिक है मैं अलग से दिखाता हूँ पहले ये लिख लीजिए
6 मार्क्स का इसका देखो। यहाँ देखेंगे का जगह कम पड़े तो तो अब तक हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले ये बहुत एक बारीक चीज है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा जो लिख रहे बाद में नीचे पे जो समझिए, एक आम सेंटेंस अपन पढ़े, इसके तर्जुमा क्या जरा बोले। आदमी है, ये एक मर्द है, ये एक आदमी ही इज अ मैन, दिस इज अ मैन। हाजा क्या है यहाँ पे, दिस इज मुब्तदा है, रजुल क्या है, खबर। खबर कैसा मालूम होता था खबर है बोल के, क्योंकि खबर इंडेफिनिट रहती है, देखिए आखिरी में जो है ना दो पेश आते उसको, अगर एक सिंगल वर्ड रहा आमतौर पर, वो एक्सेप्शंस कुछ अलग चीज है, लेकिन आमतौर पे ये रूल है, ठीक है, मुब्तदा खबर। अब अगर मैं बोलूं सेम वही वर्ड है, सिर्फ मैं लगा दिया स्टार्टिंग में अलिफ और लाम। अब इसका तर्जुमा बोलो। इसका तर्जुमा क्या हो सकता है, अंदाजा है, बड़े तो नहीं, इसको एक अंदाजा करके बोलेंगे, इसका तर्जुमा क्या हो सकता है। इज द मैन आता है, इसके लिए आखिरी में ये जो है इज यहां से निकला, जब तक वो यहाँ था इसका यहाँ से एक ट्रिक है, वैसा नहीं है सब में, लेकिन एक समझ जाइए कि उनसे इज निकल रहा हो, वो नहीं रहा तो इसके मीनिंग है। एक अंदाजा खलो खाली लिटरली देखा अपन देखें तो हादा दिस और जो दिस द मैन, लेकिन इसका तर्जुमा अपन बोलेंगे दिस मैन, ये आदमी, ये आदमी, ठीक है। अब देखिए मैं लेसन की एग्जांपल ले रहा हूं, ताजिर अपन जो अब तक पढ़ लेते आ रहे हैं, ये इसको हटा के पढ़ रहे हैं, हादा ताजिर, क्या है हादा ताजिर, दिस इज मर्चेंट, ये क्या है, बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है। तो अपने पास ये क्लियर है कि हादा क्या है, अपने पास क्या है, मुब्तदा, ताजिर क्या है, खबर। जो है वो क्या है अपने पास, ताजिरुन से है उनके, जरूरी नहीं, लेकिन अगर आमिनतु है तो आमिनतु के आखिरी में तुन नहीं आता उनके, वो समझ जाना, वो तुन उस वक्त नहीं आता, तो उसलिए उसमें अब आप बोलेंगे कि हाजी आमिनतु, आमिनतु तो नहीं, इसके माने कैसा लगेगा, तो एक्सेप्शन उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन आम कदम समझने के लिए, ठीक है। मुब्तदा खबर, तो एक आम सी बात है कि मैं बोलना चाह रहा हूं ये एक कारोबारी शख्स है, ठीक है, दिस इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, लेकिन मेरे को ये बोलना है कि ये आदमी बिजनेसमैन, जब कैसा बोले दिस मैन इज अ बिजनेसमैन, राइट, लेकिन अरबिक में कैसा बोलेंगे, उस वक्त ये चीज काम आती है, अर्रजुलु, हादर रजुलु, तो अर्रजुलु का कोई रूल नहीं है, अर्रजुलु का कोई रूल नहीं है, अपनी बात इससे भी खत्म हो जाती है, हादर ताजिर, ये ताजिर है, बात खत्म होगी, लेकिन ये आदमी ताजिर है बता आपने को, तो हादर का कुछ रूल लेंगे, इसको बोलेंगे बदल, क्या बोलेंगे इसको, बदलन, बदल, किसको बोलते हैं बदल, अपन उर्दू में भी समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट,
क्या है ना, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसका है, हाजा, तो इसको बोलेंगे अपन मुब्दल मिनहु। इतनी जरूरत नहीं है अपने मुद्दा जाने की, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज। मुब्दल मुब्दल मिनहु मतलब सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम। सब्स्टिट्यूट तो है, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन किसका है, हाजा का सब्स्टिट्यूट है। यानी ये कि हाजा के बदले में रजुल आया हुआ है, रजुलों को निकालने से भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आज इसका सब्स्टिट्यूट है। तो जब ये बात अपने को समझ में आ गई कि अपने को बोलना है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हाजा किताब है, ये बुक है, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है कि अच्छा एक और एग्जांपल लेंगे कि किताब की मिसाल लेंगे अपन बोल सकते हैं कि ये नई बुक है, कैसा बोलेंगे, हाजा किताब जदीद, ये नई बुक, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है कि ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, तो उसको कैसा बोलेंगे, हादल किताब जदीद, ठीक है। या फिर इसको और सिंपल कर देंगे, किताब है लेकिन मैं किताब नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये बोलूं कि हादा जदीद, ये नहीं है, ये नहीं है, बात समझ में आ गई, हादा जदीद, ये नहीं है, बात खत्म, सेंटेंस खत्म। एक कंप्लीट सेंटेंस है, मुब्तदा भी है, हादा मुब्तदा है, जदीद क्या है, खबर। एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसको सुनने से आदमी को बात समझ में आती है कि भाई ये इशारा कर रहा है, ये चीज नहीं है बोल के बोलो। मेरे को एक्स्ट्रा उसको जो है ना डेकोरेट करके बोलना है, उसको जो है ना और मुज़य्यन करके बोलना है कि ये किताब नहीं है, क्या बोलूंगा मैं, हादल किताब जदीद, क्योंकि मेरे हाथ में दो चीजें भी है, अब पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बुक नहीं है, पेन तो मेरे पास पुराना है मार्कर, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि हाज़ल किताब जदीद, दिस बुक इज। तो ऐसे सिचुएशन में जो बदल है ये आपको काम देता है, क्योंकि यहाँ पे टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, डस्टर भी रखे हुआ है, किताब भी है, फुल टेबल है, पेन है। अब मैं बोलूँ कि हादा जदीद ये नया है, अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि भाई क्या कलम नया है, क्या बुक नहीं है, क्या टेबल नया है, क्या डस्टर नया है, क्या वो कवर नहीं है, क्या मोबाइल नया है, क्या नया है। लेकिन मेरे को बोलना है कि सिर्फ किताब नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि हाज़ल किताब जदीद, ठीक है। लेकिन मेरे को बोलना है कि ये कलम नया है, कैसा बोलूंगा मैं, हाज़ा कलम मतलब दिस पेन वाला, दिस इज द पेन वाला, हाज़ल कलम, हाज़ल कलम जदीद। कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया, ठीक है, खाली मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो और कुछ चीजें ध्यान रख लेना, बदल आने के वास्ते जो है ना, इसमें इशारा जो है उसके बाद जो नाउन आ रहा उसके पर अलिफ लाम आना जरूरी है। अलिफ लाम नहीं आता बदल नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जो बदल है इसका एराब क्या है, मतलब इसका जो एनालाइज कर रहे हैं, रूल जो प्ले कर रहे हैं, बच्चों ने क्या आखिरी में रजुलू आएगा, रजुली आएगा, रजुलू आएगा, नहीं अलिफ लाम आएगा तो वो नहीं आता ना, तभी नहीं आता, तो लू आएगा, ली आएगा, ला आएगा। जो एराब मुब्दल मिनहु का है वो एराब बदल करेगा, यानी जिसकी जगह पे उन्हें सब्स्टिट्यूट काम कर रहा उसका भी कोई एराब रहेगा। मुब्तदा क्या आता अपने पास, मरफू है, तो इन्हें भी क्या रहेगा, मरफू। वो अलग चीज है कि जिस वर्ड के आखिरी में अलिफ आता है उसके ऊपर आ की को क्लियर नहीं होता, इन्हें है मरफू लेकिन क्लियर नहीं होता, कि हादू हादी हादू हादा नहीं हो सकता, हादा हादा ही चलता, अलिफ है आखिरी में तो उसके ऊपर चेंजेस जाहिर नहीं होते, चेंज हो रहा अंदर अंदर लेकिन बाहर दिख के नहीं आ रहा, ठीक है। तो अंदर अंदर घुट के मर जा रहा लेकिन उसको बाहर अपने को जाहिर नहीं हो रहा। ऐसे एक वर्ड पढ़ने वाले अमेरिका, अमेरिका के आखिर में क्या है, अलिफ आता, तो उन्हें अंदर चेंजेस करें उसके लिए अपने को बाहर समझने नहीं आता। तो ये कुछ वर्ड्स के अलग अलग जो एंडिंग थे उसके हिसाब से इसके आखिर में अलिफ आना, खास तौर पे अपन एक एग्जांपल सेट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हादा मुब्तदा है, ताजरुन खबर है, इससे अपनी बात बन जाए। लेकिन
स्पेसिफाई करना है कि खली पे बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ये नया है, लेकिन क्या नया है, या तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को बोलना है कि ये किताब नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि हाज़िल किताबु जदीदुन, दिस बुक इज न्यू। जो दिस बुक है, या फिर जदीद मतलब नहीं, जदीद मतलब नहीं, तो दिस बुक तो कैसा बोलेंगे, हाज़िल किताब, दिस मैन, हाज़िल रजुल, ठीक है। पुराने खदीम, खदीम, जदीद मतलब न्यू, खदीम मतलब ओल्ड, जदीद खदीम, जदीद खदीम, जी। अब अपन लेसन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल एक प्रैक्टिस करेंगे अपन, ताकि अपने को ये चीज क्लियर हो जाना कि भाई मुबदल और बदल कैसा बनेगा, ठीक है। कि किसी चीज को अगर अपने को दिस इज द बुक के बजाय दिस बुक बोलना है, कैसा बोलेंगे। दिस इज द चेयर के बजाय दिस चेयर बोलना है, कैसा बोलेंगे। दिस इज द वॉल के बजाय दिस वॉल बोलना है, कैसा बोलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड्स मैं आपको देता हूं, आप उसको बोलिए। जैसे ये खमीस है, मेरे को ये नहीं बोलना है कि हादा खमीसुन, वो तो नॉर्मल सेंटेंस पढ़ लिया अपन, ये मुब्तदा खबर है। मेरे को बोलना है ये खमीस, कैसा बोलेंगे अपन, हाज़िल खमीस, हाज़िल खमीस, ठीक है। और एक वर्ड क्या है, हांडी है, मेरे को बोलना है कि ये हांडी, कैसा बोलेंगे, हाज़िल खिदरू, खिदरू, लिखा हाज़िल खिदरू, ठीक है। नाफिज़तुन है, मेरे को बोलना है कि ये खिड़की, कैसा बोलेंगे, कुछ गड़बड़ हो, कुछ गड़बड़ हो, देखिए सेंटेंस देखिए, नाफिज़ तो क्या है, आजिज़ पढ़े ना बोलो, बारह, लेकिन हाज़ ही इस्तेमाल करना है, हाज़ा की जगह पे हाज़ ही नाफिज़, नाफिज़ तो मुअन्नस है ना, तो हाज़िल नाफिज़ नहीं होता, हाज़ ही नाफिज़, तो ये खिड़की, दिस विंडो, मेरे को पता है हाज़ ही हिन वाली, क्योंकि वो याद करना था, याद कर रहा था, जो शमसी लेटर्स थे वो याद कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम है। तो नून क्या है, शमसी लेटर है, उससे पहले अलिफ लाम आता नाम को नहीं पढ़ सकते। उसके बाद मकतब, क्या बोलेंगे, टेबल, ये टेबल कैसा बोलेंगे, हाज़िल मकतब, हाज़ा मकतब मतलब मुब्तदा खबर वाला, बातें खत्म हुआ थी, दिस इज अ टेबल, बात खत्म, स्टोरी खत्म होती है, लेकिन स्टोरी कंटिन्यू करना है। हाज़िल मकतब, दिस टेबल, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होगी, ये अनकंप्लीट सेंटेंस है। क्या बोलना चाह रहे आप, ये टेबल क्या बोलना चाह रहे, टेबल खरीदना चाह रहे, बेचना चाह रहे, टेबल नया है बोल रहे, पुराना है बोल रहे, काला है, पीला है, क्या बोलना चाह रहे, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, इनकंप्लीट सेंटेंस है, समझ रहे ना। तो देखो सिर्फ अपन पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन अपन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हाज़िही नाफ़िज़ तो जदीदतुन भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। हाज़िही नाफ़िज़ तो ख़दीमतुन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, और बनाएंगे अपन, हदीक़तु है बाग, ये बाग बोलना है, क्या बोलेंगे, हाज़िहिल हदीक़तु, ठीक है। अब प्रैक्टिस बहुत हो गई हाज़िही, अब प्रैक्टिस करेंगे तालिका और तिलका। वो चेयर बोलना है, कैसा बोलूंगा मैं, ज़ालिकल कुर्सिय्यु, कुर्सिया मैंने बोला क्योंकि ज़ालिका मुब्तदा मरफ़ू है, वो भी मरफ़ू है, ठीक है। और ये जो ज़ालिका, अब बोलेंगे कि ज़ालिका है, ज़ालिकु क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हर्फ क्या है, फिक्स रहते हैं, बफली रहते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। अंदर चेंज होता है, लेकिन बाहर से के अपने को नहीं आता। उसके बाद क्या है, मुअज्जिन लेना है, ये वो मुअज्जिन बोलना है, कैसा बोलूंगा, ज़ालिकल मुअद्दिनु, ज़ालिकल मुअद्दिन। आप जो आखिरी में जो क्लियर कर रहे हैं, उसी से सेंटेंस का मेन रोल क्या प्ले कर रहा है, वर्ड समझ में आता। अगर उसको अपन निकल के खा ले तो फिर बात समझ में आएगी। अब वो जो ऑलरेडी अरबी सीखते थे, अरब में चले गए, तो वो लोग आखिरी क्लियर नहीं करते हो, आधा मतलब बोल देते हो, तो उनके पास उनके ऑलरेडी ना प्रोफिशिएंट लोग बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन समझ रहे हैं, एनालाइज करते हैं, तो बोलना है हादा मतबुन, वो लोग ऐसा नहीं बोलते हादिही किताबुन, नहीं बोलते हादिही किताब, वो आप एक लेवल को पहुंचे बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो एनालाइजेशन जो है ना, आपके ब्रेन में एनालिसिस होता रहता है, नहीं ये हादिही किताबुन है, लेकिन वो एनालाइज करने के लिए उतना पहुंचने के लिए पहले जब हम अभी जो बिगिनिंग स्टेज में है, तो जो वर्ड की एंडिंग है उसको क्लियर करके पढ़ना है। ये मेन किताब का मेन रूल ये है कि
वर्ड के एंडिंग को क्लियर करके पढ़ना, जाहिर करके पढ़ना। और दो तीन चीजें लेंगे अपन। शरीर मेरे को बोलना है वो पलंग, कैसा बोलना है? ज़ालिका शरीर। मेरे को बोलना है वो ऊंट जमल, क्या बोलूंगा? ज़ालिकल जमल, जिम खबर लेटर। उसके बाद मेरे को बोलना है वो ऊंटनी, क्या है नाखतुन, क्या बोलूंगा? तिलकन नाखतुन। मेरे को बोलना है कि वो आंख, आइन, क्या बोलूंगा मैं? तिलकल आइन, वो आंख। ठीक है। और मेरे को बोलना है वो बदल, कैसा बोलूंगा मैं? बत्तख, खाली है पापा का शब्दों में, लेकिन तिलकल बत्तख। तो ये कॉन्सेप्ट अपन समझ लिए जो अपने आने वाले 8th लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बदल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर फिर से अपन इनको कंक्लूड करें तो बदल जो है ना, मुब्तदा जो इसमें इशारा है, इसके बाद आता, और इसके बाद आने के साथ साथ उसके बाद अलिफ लाम आता। पहचानने की सबसे इजी ट्रिक क्या है? इसमें इशारा के बाद एक नाउन आता और नाउन के ऊपर क्या आता? अलिफ लाम आता। दूसरी चीज क्या? इसका कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करने वाला नहीं है, उन्हें ला लीलू नहीं हो सकता। इन्हें जो रोल प्ले करवा, इसका भी एक इंपॉर्टेंट चीज। अब एक एग्जांपल हो सकती, ठीक है, बैग। ये क्या है? दिस हाउस। ये क्या है? सही है, सही है। क्यों, क्या मानो? बोलो फी हादल बैती, क्योंकि इन्हें अब मरफू नहीं, इन्हें मजरूर हो गया। हर वजह इसमें मजरूर, लेकिन इसमें मजरूर अलिफ के ऊपर तो क्लियर नहीं आता, क्योंकि इन्हें इसका बदल है। तो इन्हें जो रूल प्ले कर रहा है, इन्हें भी प्ले करेगा। तो फी हादल बैती, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। ठीक है। तो बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि बदल जो है ना, जिससे बदल है उन्हें उसका रूल प्ले कर, उसका कोई अलग से रूल नहीं। ठीक है। तो कोई मेरा आपका फी के हिसाब से आएगा बैठी हुई। इसको छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दिया। फी क्या है? हादा क्या है? इसमें मजरूर मतलब इसके आखिर में ज़ेर है। अगर हाजा की जगह पे बैठा तो हाजा लिख के होता, लेकिन अभी क्या पढ़े अलिफ के ऊपर क्लियर लिख के नहीं आता। तो क्योंकि इसमें मजरूर है, तो इन्हें भी मजरूरी है। इन्हें मजरूर है, नहीं मजरूर है, इन्हें कुछ अलग नहीं है, इसका बदल है, इसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। किसी भी गेम में अगर अपन देख रहे तो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, तो बैट्समैन का सब्स्टिट्यूट लेता है किसको? बॉलर को डाला करते रहते हैं नाम पे, और एक भी बैट्समैन रहेगा, तो उन्हें भी बैट्समैन का, इन्हें भी बैट्समैन रहेगा, उन्हें बॉलर का, इन्हें भी बॉलर रहेगा। तो ऐसे जो है ना, इन्हें मजरूर रहता है, इन्हें मजरूर, इन्हें मंसूब रहता है, इन्हें मंसूब, इन्हें मरफू रहता है, इन्हें मरफू। ठीक है। चलिए पे अपन मालूम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे। तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।